Good morning, students. Good morning. Very good morning. Okay, our previous class attends are all students are known as the atoms, definition of the atoms, okay, atomic number, atomic mass, and atomic structure. Now today I am start only the general formula of the electron, proton, and neutron, and atomic theory, first atomic theory, Dalton atomic theory. Okay, students. Now the general formula are created for the elements represented by X. This is Z. This is called A. This is our atomic mass. Atomic mass. Okay. Z represented of the atomic number. Good. Number and X is element. Okay, X any element. Okay, Z. Now next formula, Z is equal to E, or E is equal to P. Z atomic number, E is equal to electron, and P is equal to proton. Okay, students. Now next formula, A minus Z is equal to N. A also called atomic mass, Z also called atomic number, N is neutron. Okay. Now this formula are used or any elements are count by electron, proton and neutron. Okay. For example, any element are represented. For example, carbon. Carbon atomic number has a 6 and atomic mass 12. Carbon atomic number 6 and atomic mass 12 and atomic number 6. So electron, find out the electron, proton and neutron. Okay, they generally represents of the E negative, P positive and 0 and 1, but generally are used of the first letter of the electron, proton and neutron. So formula are created by Z is equal to E or E is equal to P. So electron is equal to carbon atom present in 6, proton is present 6 and neutron also present 12 minus 6 is equal to 6. Okay student. Now electronic configurations depends upon the only cell. Cells depends upon the only electron. So it's called carbon atom present in the two cells. Number one, K cell presence of the two electron and L cell presence of the four electron. K cell, L cell. Okay. Now next atomic structure of the carbon atom. Carbon atom are present nucleus. Nuclear are present in the proton and neutron. Nucleus present in the proton and neutron. Proton is present 6, neutron is 6. And electron are called atomic structure in first cell present in 2 electron and second cell present in 4 electron. 1, 2, 3, 4. This is atomic structure of the carbon atom. Okay student. Now next, क्लोरीन 9 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इसका ऑलरेडी क्या होता है, जनरली तो ये 18 होता है।
ठीक है। अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में आप ये सिंपल ना निकालिए, आप निकालिए क्लोरीन का। क्लोरीन 17 35.5। अब इसका आप फाइंड करिए, फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, सेल्स भी आप काउंट करेंगे। क्लोरीन 17 30.55, find out the electron, proton and neutron. Okay, chlorine has present of the atomic number 17, so electron present is 17. Neutron in subcommunity, so also proton are 17, but neutron are A minus Z is equal to A 35.5 and Z is 17, so it is called the 18.5 are present in neutron or chlorine atoms. Okay, now atomic structure are electron, so is the 17. One structure are components for the chlorine atoms are electron present in the 17. So chlorine atoms are 287. 287 cell number, cells K, L, M. Okay, first cell is nucleus. Nuclear are presence of the proton and neutron. Proton has the 17 and neutron has 18.5. Total presence in the three cell, first cell are 2 electrons, second cell are present 8 electron and third cell presents are the 7 electron. Okay, now K, L, M. Okay, 287 atomic structure of the chlorine. बहुत सिंपल है, आप रफ में करते जाइए, ऑलरेडी हो जाएगा सब। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा है, उसको हम बाद में बताएंगे। नाउ नेक्स्ट निकालिए पोटेशियम। पोटेशियम का 1939 एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक मास 39। सो फाइंड आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, proton and neutron and structure of the atom finds in the cells. For example, potassium. Potassium is also called atomic number is 19, so electron is 19, proton is 19, but neutron is 20. Okay, now electron is 19, so cell is present, cell are present 2881, 2881, 2 plus 8 10 plus 8 18 plus 1. Okay, now cells are present K, L, M and N. The structure of the proton and neutron, proton is present in 19 and neutron present is 20 and cells are present 4, 1, 2, 3, 4. First cell are present 2 electron, second cell presence of the 8 electron, third cells also presence of the 8 electron and fourth cell presence of the only 1 electron. नहीं, वो बेटा बोरबरी का जब लॉ पढ़ोगे तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होंगे जब तक उसमें 18 कंप्लीट नहीं हो जाते।
4s2 वाले में अकॉर्डिंग टू आप बाउ में अभी आप देखोगे हुंस में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, 9 नहीं हो सकते, 9 जब होंगे तब ऊपर वाले में 18 हो जाएंगे। ठीक है, अभी 20 तक आप कंप्लीट करिए। जो भी स्टूडेंट लिख रहे हैं सब ब्लर है, उनके मोबाइल में भी प्रॉब्लम है या उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि लाइट भी बंद करने पर आपको ब्लर आ रहा है, तो आप अपना नेटवर्क में आइए। नेक्स्ट करिए कैल्शियम। फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। All sub-atoms are 20 present in this calcium atom. Okay. Now electron 20. So cell is 2H2. All elements का आप निकाल लेंगे 2H2। अब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, सेकंड सेल में 8H2। बाद में यही आपके आयन बनेंगे, जो यहाँ पर 2 लास्ट आ रहा है। लास्ट सेल प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज लूज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द प्लस इलेक्ट्रॉन एंड गेन प्रेजेंस इन द नेगेटिव। ओके, तो 2 टाइप से भी आयन पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा आपका। पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब नंबर 1 से लेकर 20 तक आप सब में देख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपको कंफर्म हो जाएगा। जब 1 एलिमेंट से कंफर्म हो जाएगा तो आगे चल के आप फिर कंपाउंड्स का भी निकाल लेंगे। ओके, क्योंकि टोटल नंबर आर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, जिससे आप टोटल निकाल लेते हैं। सारी थ्योरी आपकी इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड करेगी। एक थ्योरी है जिसे आप बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटम पर इन्होंने थ्योरी दी थी, डाल्टन साइंटिस्ट थे, तो इसलिए इसको बोला जाता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आवाज जा रही तो आवाज से भी आप लिख सकते हैं, बाकी मैं आपको बता रहा हूं उससे भी आप लिख लीजिए। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। According to Dalton's, all matter where elements, compound, mixture composed of small particles called atom. थ्योरी आप इसके डिफिनीशन एटम्स की पहले लिख चुके हैं, अब इसकी थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द एलिमेंट्स आर कॉल्ड द एटम कॉजेड बाय द केमिकल रिएक्शन। अब आपको क्या, एक डाल्टन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी। उस एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट है, उस पोस्टुलेट्स को आपको लर्न करना है। कहीं भी आएगी उस थ्योरी को आपको लिखना है। पेन कॉपी आप अच्छे से ले लीजिए, मैं बोल भी रहा हूँ, आवाज भी जा रही है आपके पास, और लिख भी रहा हूँ, दोनों तरीके से आप लिख लीजिए। ठीक है, द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी आर एज डिफरेंट टाइप। आप लिख सकते हैं द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ theory are different type. Number 1, all matter made up a very small particle, made up a very small particles called atom. ओके, यानी इनकी पहली थ्योरी में कहा गया कि मैटर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो वेरी स्मॉल हैं, जिसे हम बोलते हैं एटम। Okay, number 2, atoms are carried neither created neither destroy। ना तो हम इसको बना सकते हैं और ना ही इसको हम बिगाड़ सकते हैं। तो एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल, लिख लीजिए,
atom are indivisible particle which cannot create which cannot create nor destroy डिस्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं आप in a chemical reaction फिर से बोल रहा हूं, लिख लीजिए एटम और इंडिविजुअल पार्टिकल्स which cannot created nor destroyed in a chemical reaction दोनों फिर से एक बार मिला लीजिए all matters made up of very small particles called atom. Number second, atom are indivisible particles which cannot create nor destroy in a chemical reaction. Number third, atom of given elements are identical ध्यान से लिखिएगा आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी Okay, atom of given elements are identical in mass and chemical property. Number four, atom combined in the ratio of simple whole number ओके सिंपल होल नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं होगा कि 1.2 हो जाए 1.3 हो जाए तो एटम कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर टू फ्रॉम कंपाउंड क्या पूरा लिख लीजिए टू फ्रॉम कंपाउंड ओके फोर हो गया आपका ऑल मैटर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड atoms are indivisible particles which can not created nor destroyed in a chemical reaction and third atom of given elements are identical in a mass and chemical property fourth number atom combined in the ratio of simple whole number to form compound
ओके स्टूडेंट, जनरली और बुक में आपका वन पास्टुलेट और रहता है, वो सिंपल है, अगर अगर उसको लिखने की जरूरत आपको नहीं है। द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, कांस्टेंट होता है गिवन कंपाउंड, उसकी जरूरत नहीं, आप 4 आप लिखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, इसी को आपको अपने नोट्स में भी लिखना है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन, ये पूरा आपका हो जाएगा। यस, 8, अभी बोर करी आएगा तो मैं अच्छे से समझा दूंगा, 8 ही जरूरी नहीं है। अभी सेल के बाद सब सेल जब आप डिवाइड करोगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि 8 जरूरी ही नहीं है। क्यों? सब सेल होता है, सब सेल में ऑक्टेट रूल वगैरह आएगा, उस रूल से आपको कंफर्म होगा। अभी आप परेशान मत होइए उसके लिए, ठीक है, अभी थोड़ा सा आ जाएगा। अभी ऐसे होता तो क्लास में हम ऐसे समझा देते, आपको समझ में आ जाता, ठीक है। अभी आप इतना मान के लिए कि आपको 20 एलिमेंट्स तक करना है, 20 एलिमेंट्स में आपका 8 कंपलसरी है, 288 2282 ऐसा करके आएगा उसमें, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ऑक्टेट रूल पढ़ लोगे ना, तो ऑल एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड ऑफ द ऑक्टेट रूल। हाँ, सारे एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और गेन कर देते हैं। जितना लूज कर देते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जितना गेन कर लेते हैं उतना निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये अभी चार्ज जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये हो जाएगा। ओके, now next postulates are Dalton atomic theory are consist of the two property or chemical reaction. So Dalton atomic theory explains a chemical composition of Dalton atomic theory, conversions of the mass and constant proportional. ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जैसे ही प्रपोज हो गई, इसकी पास्टुलेट्स में कि 2 थ्योरीज आपको और पढ़नी है, जिसमें आप पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में आपको इसको भी पूरा लॉ पढ़ना है आपको। और दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है, ये 2 थ्योरी पढ़ना है। हेडिंग डाल लीजिए एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ, एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन chemical compositions by Dalton atomic theory, by Dalton atomic theory। Okay, explanation of law of chemical composition by Dalton atomic theory. Number A and number B, very important for this chapter. Law of conservation of mass, law of कंजर्वेशन, इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड नंबर सेकेंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस।
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस, PROPORTION, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। बहुत सिंपल थ्योरी है, आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये आपको आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम पोस्टुलेट डिवेट कर लेते हैं क्वांटम एटॉमिक थ्योरी की, इसको प्रूव करने के लिए दो थ्योरी और आती है जिसे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस या लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास बोलते हैं। दूसरा होती है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। तो इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, अभी आप पढ़ोगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में भी ये दोनों थ्योरी डिटेल से आएगी। एक थ्योरी और इसमें जुड़ जाती है, वो तो हम बाद में बताएंगे आपको, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास आपको बताते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास होता क्या है, कैसे इसको लेवासियर एक साइंटिस्ट थे जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री है, एंटोनी लेवासियर, 1774 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन बाय मॉस की पूरा देते हुए उन्होंने बता दिया, इफ एनी केमिकल रिएक्शन टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट। यानी एंटोनी लेवाशियर ने यह प्रूव कर दिया कि हमारे नेचर में जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनता है उनका इक्वल मास होता है। लॉ ऑफ, ये लिखा हुआ है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। कंजर्वेशन मास का मतलब क्या हुआ, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट का टोटल मास, नो एटॉमिक नंबर, मैं मास बोल रहा हूं ध्यान रखिएगा, एटॉमिक मास जो टोटल रिएक्टेंट का होगा वही किसका होगा, प्रोडक्ट होगा। So if any chemical reaction of total weight, if any chemical reaction of total weight of the product equal to the reactant, ओके कल दोनों ये थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपका टाइम भी आप हो रहा है 30 मिनट्स। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में आप इतना समझ लीजिए, कोई भी रिएक्टेंट है और कोई भी प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये थ्योरी ऑलरेडी हमारे मॉडर्न में नहीं है, ये पहली की थ्योरी थी, इसलिए इसको हम ऑलरेडी पढ़ेंगे आपको कि कंजर्वेशन मास, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कंजर्वेशन मास फॉलो करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल से जब आप समझेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो दोनों साइड का आप देखेंगे तो दोनों का इक्वल मास होगा। जैसे सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, ये कार्बन है और ये आपका ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो एंटोनी लेवाशियर ने बता दिया था तो टोटल मास इसका होगा, कार्बन की देखिए कितना होता है, 12 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 × 2, तो 16 × 2 कितना हो जाएगा, 32। अब 32 और 12 ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 44। ठीक है, रिएक्टेंट का मास जो है कितना है, 44 है। अब लास्ट में हम जब देखेंगे तो आप प्रोडक्ट का भी देखेंगे तो 12 प्लस 16 × 2 है, ये भी टोटल आ जाएगा 44। ठीक है, यही फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। ठीक है, यही है आपका, इफ एनी केमिकल रिएक्शन ऑफ टोटल वेट, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका जो टोटल वेट होगा, जो प्रोडक्ट का होगा वही आपका रिएक्टेंट का होगा। ओके स्टूडेंट।